as well. Now the question again is, what is the source of international law? इसके माखज़ क्या हैं? इसके sources क्या हैं? So the international law has different sources. Number one is treaty, second is customs, the third is judicial decisions, writing of scholars, jurists and commentators, and resolutions of international organizations and institutions. These are some of the sources of international law. Let us discuss them point by point. पहला कौन सा है? The first is treaty. What is treaty? मुआहदा किसे कहते हैं? क्या होता है ये? If you think over it, you can see that for a treaty, at least you must have how many parties? At least there should be two parties, or even there could be more than two parties. But at least you need two parties for a treaty. So a treaty is an international agreement concluded between states or parties. अब ज़रूरी नहीं कि internationally हो, but because we are dealing with international law, so as a result here the treaties are those which are international. So the international agreement between two states or two parties. जब दो states, दो फरीक आपस में एक agreement करते हैं, एक मुआहदा करते हैं, उनके बीच में कुछ चीज़ें तय हो जाती हैं कि इस तरह उसको फॉलो करना है. So this is called an agreement, and this is also called a treaty. It may be written or it may be oral, but as long as it is an agreement between two parties, this would be called a treaty. Now there are two types of treaty. One deals with treaty and agreements between two states. जिस तरह पहले बताया कि मिनिमम इसमें दो फरीक होने चाहिए. तो अगर दो स्टेट्स के बीच में कोई एग्रीमेंट हो रहा है, so this is one type of treaty, and this treaty would be binding on these two states. ये सिर्फ इन दो फरीकों पे लाजिम है कि वो उस ट्रीटी के जितने भी शिकें हैं, उसके जितने भी पॉइंट्स हैं, उसको फॉलो करें, उस पर अमल करें. बाकी स्टेट्स का उन पे एग्री होना ज़रूरी नहीं है, because they are not a party to that kind of treaty. अगर दो ममालिक आपस में कोई मुआहदा करते हैं तो ज़रूरी नहीं है कि कोई तीसरा मुल्क भी उसी के ऊपर अमल करे, क्योंकि वो उसका सिग्नेटरी नहीं है, उसके ऊपर साइन नहीं किए, वो इस मुआहदे का मेंबर ही नहीं बना. So this kind of treaty is only applied on the two states which are agreeing and which are signing the treaty. The second is called that treaty which is between many states, or you can say it is among many states. So this is giving general rules for a large number of states. This plays more significant role than the first one. ऐसे जो treaties हैं, क्योंकि इसमें ज़्यादा states आ जाते हैं, इसमें फरीक ज़्यादा हैं, तो ऐसी treaty का रोल पहले treaty के मुकाबले में ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि इसमें ज़्यादा मेंबर हैं, इसमें ज़्यादा अरकान हैं. इसकी जो कुछ एग्जांपल्स हैं, उसमें पीस ऑफ वेस्टफैलिया है, which was signed in which year? 1648. So Peace of Westphalia is one of the example of this kind of treaty, in which there were many European states that agreed on some points. Then we have Treaty of Versailles, जिसमें वो states that were involved in World War I were the members. Then we have Geneva Convention, and then there are two Geneva Conventions, 1929 and 1949. Then we have then UN Charter of 1945. So these are some of the treaties in which there were many states. As a result, these treaties should be followed by all those states which were present in these kind of treaties, and its role is more than that of the first treaty in which there are only two states. आपको दूसरे इमेज में नजर आ रहा है कि that's the Treaty of Peace, which was called the Treaty of Versailles, signed after World War I. Now the question is, are all treaties can be source of international law? क्या जितने भी treaties किए जाते हैं, क्या सारे वाकई इंटरनेशनल लॉ बन जाते हैं? तो ज़ाहिरी बात है कि ये ज़रूरी नहीं है. Not necessary, because a treaty could only be international law if it is agreeable to a large number of states. अगर दो states या तीन states आपस में कोई agreement कर लें, तो वो तीन states का agreement पूरी दुनिया पे तो लागू नहीं है कि वो
उनके ऊपर एप्लीकेबल हो जाएगा। लेकिन अगर स्टेट्स ज़्यादा हों या वो जो ट्रीटी 2 स्टेट्स कर रहे हैं या 3 स्टेट्स कर रहे हैं वो ऐसी उसमें बातें मौजूद हैं कि जो कि बेस्ड ऑन जस्टिस है, बेस्ड ऑन इक्विटी है, तो हो सकता है कि उसको ज़्यादा स्टेट्स फॉलो करें, क्योंकि दैट पॉइंट्स बेस्ड ऑन जस्टिस कैन हेल्प ऑल द स्टेट्स। तो अगर बहुत से स्टेट्स उसको फॉलो करें, उसको तस्लीम करें, then that kind of treaty can be a source of international law. So treaties which are widely accepted and endorsed by states can become source of international law. The second source of international law is called custom. The question is, what is custom? जिसको आप रसूम भी कहते हैं, रिवाज भी कहते हैं, तो आखिर क्या होता है ये? इसमें एक बात तो आप काफ़ी आसानी से गैस कर लेंगे कि रसूम और रिवाज काफ़ी अरसे से चले आते हैं। दे आर नॉट मेड एट वंस, रादर दे आर कंटिन्यूड फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। तो मतलब ये है, ऐसे प्रैक्टिसेस, ऐसे कन्वेंशंस जिसको लोग काफ़ी अरसे से फॉलो करें, सो दिस काइंड ऑफ प्रैक्टिसेस वुड बी कॉल्ड कस्टम्स। सो कस्टम्स आर जनरली एक्सेप्टेड प्रैक्टिसेस ऑफ अ ग्रुप ऑफ पीपल, जिसमें ये भी शर्त है कि वो जो प्रैक्टिस है वो ज़्यादा लोग करें, ना कि सिर्फ 1-2 लोग करें। तो ऐसे प्रैक्टिसेस, ऐसे अवामिल, ऐसे काम, ऐसे अमूर जिनको एक ग्रुप करता है और वो ग्रुप उसको काफ़ी अरसे तक करता आ रहा हो, दैट काइंड ऑफ प्रैक्टिसेस कैन बिकम अ सोर्स ऑफ custom and then they can be a source of international law as well. So if these rules and practices are widely accepted by states, then such customs are made part of international law. इसी तरह हमारे माशरे में भी ऐसे प्रैक्टिसेस हैं, ऐसे रसूम व रिवाज हैं जिनको हमारे लोग काफ़ी अरसे से करते आ रहे हैं। तो जब उसको काफ़ी अरसे से करते आते हैं, so that can be made a part of national law, and if all the states of the world also agree to it, it can become a part of international law. Why this can become a part of international law or national law? क्योंकि जब लोग उसको करते हैं तो इसका मतलब ये है कि लोगों ने उसको एक्सेप्ट कर लिया है, उसको फॉलो करना आसान होता है। तो अगर उसको फॉलो करना आसान है और लोग उसको करते चले आ रहे हैं, दिस मीन्स दैट इट कैन बी इजीली फॉलोड and therefore it can solve us different types of problems, and the people can also follow it without any hesitations. That's why these kind of customs can become part of international law. Examples are, the rules of diplomacy are taken from long prevalent customs coming from ancient Greek and Rome. जितने भी हमारे डिप्लोमेसी के रूल्स हैं, ये हमें कहाँ से मिल रहे हैं? ये हमें जो एंशिएंट ग्रीक है और रोम की सकाफतें हैं और वहाँ की जो गवर्नमेंट है, रोमन एम्पायर है, तो उस ज़माने में जो भी सफ़ीर जिस तरह काम किया करते थे और किस तरह उनके बीच में रिलेशंस हुआ करते थे, और उस वक्त हाउ द प्रैक्टिसेस यूज्ड टू बी फॉर दिस काइंड ऑफ डिप्लोमेटिक अफेयर्स व्हेन अ डिप्लोमेट वुड ट्रेवल फ्रॉम वन कंट्री टुवर्ड्स द नेक्स्ट कंट्री इन एंशिएंट ग्रीक और इन द रोमन एम्पायर, तो कौन से प्रैक्टिसेस पे उस वक्त स्टेट का इत्तेफाक था। तो वो सारे इत्तेफाकात और जो एग्रीमेंट्स उनके बीच में हुए थे, हाउ टू ट्रीट द डिप्लोमेट्स एंड व्हाट आर देयर फंक्शंस एंड व्हाट आर देयर इम्यूनिटीज और देयर राइट्स, सो दिस बिकॉज दे वर प्रेवलेंट इन दैट सोसाइटी, तो वहाँ से वो एज अ कस्टम ले लिए गए हैं एंड नाउ दे हैव बिकम अ पार्ट ऑफ इंटरनेशनल लॉ। सो इंटरनेशनल लॉ में जितने भी डिप्लोमेसी के रूल्स हैं, तो ये वो रसूम व रिवाज हैं जो कि रोमन एम्पायर और ग्रीक सिविलाइजेशन से हमें मिले हैं, क्योंकि ये उस वक्त के ज़माने में प्रैक्टिस किए जाते थे। इसी तरह नेविगेशन ऑफ कमर्शियल वेसल्स हैं, समंदर में जो बहरी जहाज़ मूव करते हैं, सफ़र करते हैं, तो इसके बीच में जो शुरू वक्त से स्टेट एग्रीड हैं दैट दे शुड बी फ्रीली मूव, देयर शुड बी नो रिस्ट्रिक्शंस, सो दिस काइंड ऑफ रूल्स हैव बिकम नाउ पार्ट ऑफ इंटरनेशनल लॉ। द जेनीवा कन्वेंशन and the Hague Conference on conduct of war, treatment of prisoner of war, and the entire provision of Universal Declaration of Human Rights of 1948, all of them are taken from customs. So all these resolutions which are passed by United Nations and by other organizations, so they are coming from different types of customs. जिस तरह
जंगी कैदी के जो हकूक़ हैं, तो जब भी जंग के ज़माने में जंगी कैद किए जाते थे, उनको जो हकूक़ प्रोवाइड किए जाते थे, तो वहाँ से जो प्रैक्टिसेस आ रही हैं, सो नाउ दे वर बीइंग मेड अ पार्ट ऑफ ह्यूमन राइट्स by United Nations Charter as well, and by different types of resolution as well. So these are made from those constitutions, from those practices. The third source of international law is judicial decisions, adalati faisle. So how the judicial decisions of courts can become a part of international law? अब ज़ाहिरी बात है, जब जज के सामने different types of dispute आते हैं, different types of cases आते हैं, तो वो उनका फैसला देते हैं, उनका जब फैसला करते हैं, so they made their decisions on justice. They go for all kind of analysis, and when they give their verdict, when they give their decisions, so that decision they try to be made on justice. तो अगर इसी तरह कोई जज different types of matters में फैसले देता है और वो चूंकि इंसाफ पे मबनी होते हैं, अगर ऐसे फैसले different states तस्लीम कर लें, so this can also become a part of international law. So the judges, while interpreting law and using their good sense of justice, also contributed to international law. The verdict given by judges also serve as a precedent for other judges in deciding about a case. यहाँ पे ये precedent का word use हुआ है, जिसका मतलब नज़ीर है या मिसाल है, जिसका मतलब ये है कि जब एक जज किसी केस में कोई फैसला देता है, तो वो दूसरे जज के लिए जो उनके बाद आते हैं, उनके लिए एक प्रेसिडेंट बन जाता है। प्रेसिडेंट का मतलब उनके लिए एक मिसाल बन जाता है, जिसका मतलब ये हुआ कि फिर अगर आइंदा जजों के सामने ऐसा केस लाया जाता है, तो वो उसी तरह फैसला करते हैं जिस तरह उससे पहले जज ने फैसला किया होता है, क्योंकि वो इंसाफ पे मबनी होता है। तो दिस हेल्प्स द अदर जजेस which are coming later on to decide about the case very conveniently and without any conflict, because there are some decisions which are already made before it. तो ये काफ़ी हेल्प करते हैं, जो भी उनके फैसले होते हैं तो ये बाकी जज हैं उनको फॉलो करते हैं। अगर वो समझते हैं कि ये फैसला इंसाफ पे मबनी था, फिर वो उसको फॉलो करते हैं और उसको एक मिसाल बना देते हैं। सो इसी तरह इंटरनेशनल लॉ में भी ऐसे फैसले एक्सेप्ट कर दिए जाते हैं and they are become a part of international law. The decisions of ICJ can also be accepted by national courts as based on equity and justice and thus become a part of national law. ICJ आपको पता है कि किस चीज़ का मुखाफिफ है? So ICJ stands for International Court of Justice, which is the international court which is solving disputes between different states, जिसको आलमी अदालत बराए इंसाफ कहते हैं, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है जी? उसका हेडक्वार्टर हेग में है, नीदरलैंड में। सो ICJ के जो फैसले होते हैं, सो दे आर आल्सो बिकम अ पार्ट ऑफ इंटरनेशनल लॉ, बिकॉज ICJ सॉल्व डिस्प्यूट्स बिटवीन डिफरेंट स्टेट्स, and when they are solving these disputes between different states, the other state also know that what is the good decision, what is the result of that dispute, and therefore then they try to follow that particular decisions. तो काफ़ी help देता है इनके ये फैसले. So these kind of verdicts, these kind of judicial decisions by ICJ becomes part of international law. For example, the judicial decisions made by ICJ, ICC, ICJ International Court of Justice, ICC International Criminal Court है, UN Special Court for Sierra Leone, European Court of Justice, European Court of Human Rights, African Courts of Human Rights, Inter-American Courts of Human Rights. ये मुख्तलिफ अदालतों के नाम हैं, ये मुख्तलिफ अदालतें हैं, मुख्तलिफ कोर्ट्स हैं जो कि मुख्तलिफ जगहों पे कायम है, जिसमें ICJ नीदरलैंड में कायम है, फिर ICC इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट है, इसी तरह सीरा लियोन में कोर्ट है, इसी तरह यूरोपियन कोर्ट है, अमेरिकन कोर्ट है. सो ऑल दीज इंटरनेशनल कोर्ट्स, so when they are deciding about different types of disputes and matters, so that decisions can become a part of international law. उनका जो भी फैसला आता है तो बाकी जितनी भी रियासतें हैं वो चाहती हैं कि वो उसको फॉलो कर सकें और ऐसे डिस्प्यूट्स ना हो. अगर होगा तो हो सकता है उसका फैसला भी ऐसा ही आए.
तो as a result this is then accepted by different states and as a result they are followed and accepted as international law. एक ऐसा ही फैसला मार्च 1941 का है. The judgment on the environment said, no state has the right to use or permit the use of its territory in such a manner as to cause injury by fumes or to the territory of another. जिसमें ये एक माहौलियाती आलूदगी के बारे में फैसला है कि कोई भी जो स्टेट है उसको ऐसा कोई भी इख्तियार नहीं है कि अपने इलाके को ऐसा कंट्रोल करे, अपने इलाके को ऐसा यूज़ करे जिससे दूसरी रियासत की हदूद में कोई आलूदगी आती हो या दूसरे स्टेट का माहौल आलूदा होता हो. तो ऐसी एक्टिविटी पॉसिबल नहीं है, ऐसी एक्टिविटी एक्सेप्टेबल नहीं है. दिस मीन्स व्हेन अ स्टेट हैज़ द राइट टू यूज़ इट्स ओन टेरिटरी, एक रियासत को अपनी हदूद, अपने इलाका, अपनी ज़मीन को यूज़ करने का पूरा इख्तियार हासिल है. लेकिन ये इख्तियार यहाँ पे रिस्ट्रिक्ट हो जाता है कि आप जिस तरह उसको यूज़ कर रहे हैं उससे किसी दूसरे स्टेट के माहौल में कोई आलूदगी ना आए, उस पर कोई इफ़ेक्ट ना हो. अगर इफ़ेक्ट हो रहा है then this means that state has to stop its activity, it has to stop that pollution. So this is one of the decision which was given by the court and as a result now the state tried that कि वो ऐसा कोई काम ना करें जिससे दूसरे स्टेट की फ़िज़ा को या वहाँ की ज़मीन को या वहाँ के पानी को कोई आलूदगी हो. So these are different types of decisions which helps other states and therefore can become part of international law. The fourth source of international law is writings of scholars, jurists, commentators. इसका क्या मतलब है? So the scholars, the expert people, the expert on legal matters, इस तरह jurist हैं जो कि फैसला करने में माहिर होते हैं या judges होते हैं या commentators जो कि तबसरा करते हैं on different legal matters. So ऐसे जो scholars हैं, ऐसे जो thinkers हैं, so the views of such thinkers, the views of such scholars and their writings, उनकी जो books हैं, उनके जो तबसरे हैं या उनके जो masterpieces हैं, उनके जो commentaries हैं, so these can become also a part of international law. Why? Because they are expert people, they are scholarly people, they have all the knowledge, and when they use their knowledge, they use it in good sense. They use it such that the rights of other people और अदर ऑर्गेनाइजेशंस आर नॉट वायलेटेड. तो जब वो ऐसे तबसरे करते हैं जो ये कानून के मुताबिक इंसाफ पे मबनी होते हैं तो ऐसे फैसलों को बाकी लोग भी एक्सेप्ट कर लेते हैं. और अगर इसी तरह ऐसे इनके जो फैसले हैं, इनके जो कवानीन हैं, इनके जो तबसरे हैं, अगर वो बाकी स्टेट्स भी तस्लीम करने लग जाएं, सो देन दीज काइंड ऑफ कमेंट्रीज, दीज काइंड ऑफ रिपोर्ट्स कैन आल्सो बिकम पार्ट ऑफ इंटरनेशनल लॉ. So the legal opinion of jurists and scholars are held in high esteem and may become part of international law. क्योंकि लोग उसकी कदर करते हैं, उनकी राय को जानते हैं और उनको इज्जत की निगाह से देखते हैं. The commentaries, interpretations and explanations offered by these experts on different matters help in clarifying concepts and may become a part of international law. Because when these people are explaining, जब ये वजाहत करते हैं different issues किया, different problems किया, तो उन वजाहत से काफ़ी बातें सामने आ जाती हैं और उन बातों से different kind of rules और principles set कर दिए जाते हैं. So then these can become part of international law. Some of the notable names, some of the notable thinkers and jurists and scholars are Hammurabi, Sir Francis Bacon, John Austin, Lignano, Vittoria, Gentilis, Hugo Grotius. So these are some of the notable names that we can see that they have contributed to international law. अगर इसमें हम ज़रा सा एग्जांपल ले लें तो जो हैमराबी है तो उसने बाकायदा एक कोड बनाया हुआ है जिसे कहते हैं द कोड ऑफ हैमराबी. हैमराबी वॉज अ बेबीलोनियन किंग. ये कदीम ज़माने में जो कदीम बाबल का ज़माना है उसमें एक बादशाह गुजरा है और ही इज़ फेमस that he has given a code of law.
उसने बाकायदा कानून का एक कोड, एक दस्तूर दिया हुआ है जिसमें कलेक्शन ऑफ लॉस हैं, एंड देयर आर ऑलमोस्ट 282 लॉस in that code. So the code of Hammurabi consists of 282 laws. इसके जो कुछ लॉस हैं, अगर हम ज़रा सा इसको देख लें तो इसमें एक जो मशहूर लॉ हैमोराबी से मंसूब है, जो कि अभी भी काफ़ी कंट्रीज उसको फॉलो करते हैं, एंड डिफरेंट इंटरनेशनल स्टेट्स में इट इज़ बिकम इंटरनेशनल लॉ, जो कि रूल है कि एन आई फॉर एन आई, अ टूथ फॉर अ टूथ, आंख के बदले आंख, दांत के बदले दांत। तो अगर कोई किसी का जो नुकसान करेगा तो उसी तरह नुकसान उस बंदे को भी मिलेगा, और यही प्रैक्टिस किया जाता है अमूमन। ऑल द स्टेट्स follow these kind of principles and they go for similar kind of punishments in their constitutions. So you can see that this law has become a very wide international law. बाकी जो लॉस हैम्मुराबी के कोड में गिवन है उसको अगर हम सिर्फ जानने के लिए देखते हैं तो उसमें कुछ लॉस यहाँ पे काफ़ी दिलचस्प हैं, जिसमें एक कुछ लॉस ये हैं कि इफ़ अ बिल्डर बिल्ट अ हाउस फॉर अ मैन and do not make its construction firm, and the house which has been built collapse and cause the death of the owner of the house, that builder shall be put to death. ये कोड इसलिए लिया गया है कि हम आजकल देखते हैं कि इस लॉ को कोई फॉलो नहीं कर रहा। ऐसे बहुत से बिल्डर्स हैं जो कि मुख्तलिफ़ किस्म की बिल्डिंग्स बना देते हैं, ब्रिजेस बना देते हैं, और उसके बाद फिर वो कोलैप्स हो जाती हैं और उन कॉन्ट्रैक्टर के साथ कुछ नहीं होता। तो हैम्मुराबी के रूल के मुताबिक अगर कोई बिल्डर किसी के लिए एक मकान बना दे और मकान मजबूत ना बनाए और फिर वो मकान गिर जाए, जिसकी वजह से जो मालिक है, जो मालिक ये मकान है, अगर उसकी फौतगी हो जाए, अगर वो उसमें हलाक हो जाए, तो उसके बदले द बिल्डर विल आल्सो बी किल्ड। ये उसकी सज़ा है कि बिल्डर को भी वही सज़ा देनी चाहिए। इफ़ इट काज द डेथ ऑफ द सन ऑफ द ओनर ऑफ द हाउस, दे शैल पुट टू डेथ अ सन ऑफ दैट बिल्डर। काफ़ी ख़तरनाक कानून है और ये इंटरनेशनल लॉ का हिस्सा नहीं है वैसे, लेकिन जस्ट टू बी एन इंटरेस्टिंग पॉइंट कि हाउ दैट लॉ वर्क, कि अगर उसमें उसका बेटा मर जाए तो जो बिल्डर का बेटा है, कोई भी बेटा, उसकी डेथ करनी चाहिए। If it cause the death of a slave of the owner of the house, he shall give the owner of the house a slave of equal value. अगर उस घर में उसका गुलाम मर जाए तो बिल्डर को ऐसा ही गुलाम उसको देना चाहिए। If it destroy property, he shall restore whatever it destroyed. जो प्रॉपर्टी जितना उसका नुकसान हो उस सारे नुकसान की तलाफी करेगा। And because he did not make the house which he built firm and it collapsed, he shall rebuild the house which collapsed from his own property at his own expense. ये काफ़ी ज़बरदस्त पॉइंट है कि चूँकि उसने मकान मजबूत नहीं बनाया तो अब उसने वो मकान दोबारा बनाना है, और इस दफ़ा उसने अपने ख़र्चे पे उस मकान को बनाना है। अगर ये आखिरी रूल अभी भी फॉलो हो जाए, कोई भी बिल्डर कोई भी प्रॉपर्टी बनाता है, कोई ब्रिज बनाता है, कोई रोड बनाता है, कोई बिल्डिंग बना देता है, अगर कोलैप्स हो, सो कैन वी यूज दिस काइंड ऑफ रूल ऑन द सेम बिल्डर दैट ही हैज टू मेक अगेन दैट ऑब्जेक्ट, दैट बिल्डिंग और दैट रोड फ्रॉम हिज ओन एक्सपेंसेस, देन वी वुड सी दैट द बिल्डिंग्स वुड नॉट कोलैप्स, द ब्रिजेस वुड नॉट कोलैप्स। Another code is, if a son strike his father, they shall cut off his fingers. अगर कोई बेटा ना मुराद अपने वालिद पे हाथ उठाता है तो उस बेटे की उंगलियां काट दी जाएं। So these were some of the code of Hammurabi that was prevalent in the code of Hammurabi, in which there are 282 laws. Then we comes to Hugo Grotius, who is also very notable, and his writings has become some part of international law. Hugo Grotius was a lawyer who wrote the Law of War and Peace in 1621. ये इसकी बुक का नाम है। This book is considered the first definitive book on international law. The condition of warfare and respect for private person
and their property is mentioned in that book. तो ये जो उसकी बुक है जिसका नाम द लॉ ऑफ वॉर एंड पीस है, इसमें इसने काफ़ी जो रूल्स बताए हुए हैं that are related to war, and most of them have become a part of international law, जिसमें ये है कि जंग के ज़माने में कैदियों के साथ कैसे सलूक किया जाए, और जो औरतें हैं, जो बच्चे हैं, जो बूढ़े हैं, उनके साथ कैसा बर्ताव किया जाएगा, उनके क्या हकूक़ हैं, क्योंकि जंग को ख़त्म तो नहीं किया जा सकता, लेकिन जंग के ज़माने में कम से कम जो हकूक़ हैं उनका तहफ़्फ़ुज़ किया जा सकता है. So these principles which are given by Hugo Grotius in his book, most of them have been taken in the international law. इसी तरह the principle of freedom of seas जो Hugo Grotius ने डिफाइन किए हैं, जो डिस्कस किए हैं कि किस तरह the ship should move in high seas or in the oceans. It also stresses freedom to navigate the ocean. It also disapproves of war fought in water. कि जो भी समंदरी इलाके हैं, समंदरी पानी है, उसमें जितनी भी शिप्स हैं, so they are free to move. They should not be stopped. They have the full right to use the water, and there should be no war in water, ताकि पानी को आलूदा ना किया जाए, पानी पे वो गंदगी ना लाई जाए, पानी को साफ रखा जाए. पानी नेविगेशन के लिए है, इंसान के फ़ायदे के लिए है, तो उसको फ़ायदे के लिए यूज़ किया जाए. तो इस तरह इसके जितने भी ये रूल्स या प्रीसेप्ट उसने दिए हैं, सो दे हैव बिकम अ पार्ट ऑफ इंटरनेशनल लॉ. द नेक्स्ट सोर्स ऑफ इंटरनेशनल लॉ इज रिजोल्यूशंस ऑफ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस एंड इंस्टीट्यूशंस. वो करारदादें जो कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस से पास होती हैं या जो बड़े बड़े इदारे हैं वहाँ से पास होती हैं, सो दे कैन बिकम पार्ट ऑफ इंटरनेशनल लॉ. Remember, it has become a very strong source at present, क्योंकि हमारे पास एक जो इदारा है जो कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, which is very strong. So what is the name of that organization? जी, the name of that organization is United Nations Organization, which is composed of more than 190 states. तो जब इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन हो जिसमें पूरी दुनिया की तकरीबन नुमाइंदगी शामिल है, तो जब ये किसी फैसले पे पहुंचते हैं और उसको पास करते हैं, तो ये जो रेजोल्यूशन ये पास करते हैं, क्योंकि इसको पूरी दुनिया की मेजॉरिटी ने पास कर दिया है, अब स्टेट उसको इजीली फॉलो करते हैं. तो जब उसको फॉलो करते हैं, सो दैट काइंड ऑफ रेजोल्यूशंस बिकम वेरी स्ट्रॉन्ग सोर्स ऑफ इंटरनेशनल लॉ. सो द रेजोल्यूशंस पास बाय इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑन गिवन सब्जेक्ट मैटर constitute a source of international law with respect to the matter in question. इसमें सबसे जो strong point है वो ये है कि it enjoys the support of many states for its enforcement, क्योंकि इसके पास होने में पीछे काफ़ी ज़्यादा रियासतों का ताल्लुक है, पीछे काफ़ी ज़्यादा स्टेट्स इसको सपोर्ट कर रही हैं. इसीलिए ऐसे रेजोल्यूशंस बहुत कदर की निगाह से जाने जाते हैं कि इसको वर्ल्ड की मेजॉरिटी ने पास किया है, और फिर उस पर अमल करना स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाता है. जिसमें कुछ रेजोल्यूशंस के नाम ये हैं: UN Covenant on Civil and Political Rights 1966, UN Covenant on Economic, Social and Cultural Rights 1966, UN Convention Against Torture 1984, UN Convention on Elimination of Racial Discrimination, UN Convention on the Elimination of Discrimination Against Women, UN Convention on the Rights of Child. So you can see that there are different types of groups that were involved in these conventions, and these conventions are giving the rights and different types of the needs that these groups have, and therefore they should be protected. तो इसको तकरीबन सारे मुल्क की रियासतों ने तस्लीम कर लिया है, और अब वो इनको फॉलो करते हैं कि ये जो हकूक़ हैं, जिसमें चाइल्ड के हकूक़ हैं, जिसमें विमेन है, जिसमें रेशियल डिस्क्रिमिनेशन है, जिसमें टॉर्चर के अगेंस्ट जाना है. सो दिस काइंड ऑफ राइट्स आर नाउ गिवन बाय ऑल द स्टेट्स, एंड दे आर फॉलोइंग इट बिकॉज दैट हैज़ बिकम द पार्ट ऑफ इंटरनेशनल लॉ. If we just see that what kind of rules are being passed by one of these conventions, so let us take the example from Convention on Elimination of Discrimination Against Women. ये वो resolution है जो कि women
के हक में पास किया गया है ताकि उनके साथ कोई नाइंसाफ़ी ना हो. So this convention which was passed by UN states that to embody the principle of equality of man and women in their national constitutions, कि जितने भी states ममालिक हैं जो इसको पास कर रहे हैं, जो कि UN के मेंबर्स हैं, वो इंश्योर करेंगे कि मर्द और औरतों को एक जैसे हकूक दिए जाएं और ये बाकायदा वो अपने आइन में इसको मेंशन करेंगे. The state parties shall also take appropriate measures, including legislation, to suppress all form of traffic in women and exploitation of prostitution of women. कि औरतों के साथ कोई ज़्यादती नहीं की जाए, उनका इस्तेहसाल ना किया जाए, उनको ना बेचा जाए. तो ये जितने भी स्टेट्स हैं, जितने भी यूएन के मेंबर्स हैं, they have to take measures, they have to take steps that these kind of tortures should not happen to women. State parties shall also take appropriate measure to eliminate discrimination against women in the political and public life of country. जिसका मतलब ये है कि जितने भी स्टेट मेंबर्स शामिल हैं, यूएन के मेंबर्स हैं, they shall also give political and public rights to the women. उनको वोटिंग का हक दिया जाए, उनको जॉब का हक दिया जाए, उनके लिए एजुकेशन बराबर की जाए. जिस तरह मेल के लिए एजुकेशन दी जाती है, इसी तरह औरतों को भी तालीम दी जाए, उनका भी यही हक है. So these kind of conventions, when they were passed by UN, so now they have become part of international law, and all the states are now bound to follow these steps and to ensure that there should be no exploitations and no discrimination against women. With this, we come to the end of